Very good, sit down. So first, most important work of a district administration is to maintain the law and order. Okay. Next, who from this side? Yes. Maintenance of land records and collect the revenue of the lands, right? Very good, sit down. So two functions we have learned. One is to maintain the law and order. Second is to collect the revenues and to maintain or to keep the land record of the people. Or next, anyone else? Please. Civics, amenities and development. Can you please explain what does this civic amenities means? आप लोग online, whoever is online, quickly tell me some of the functions of the district administration which we have learned yesterday. Three things which we have got. One is the maintaining law and order. Second is maintaining land records and collecting the revenue. Third is civics amenities. So who can tell me the term meaning of civics amenities? What word can you please repeat? That is another one of the other what called functions of the district administration. I am asking the meaning of this. What saying is to provide the civics amenities. So the meaning of civic. Exactly. Very nice. Sit down, please, everyone. Very good. So whoever answered is very good. So the rights of people, the constitutional rights which the people have, the government need to ensure that the all things is reaching to the peoples. They all, the people of India got all the rights whatever they have. Okay. Next, what Chirag was saying is to give the relief during any emergency situations, right? It can be any disaster as like flood aa jata hai kabhi, sometime it can be drought comes. So any natural disaster, in case of any natural disaster, it is the responsibility of district administration to give the support to the people of the particular particular districts, especially ये district पे होता है, district level पे होता है, ठीक है, और या state उसके बाद आता है, ठीक है. So these are the some functions which we have learned. Now if we are talking about the structure, what is the structure? The basic, the main or which we can see at the top, that is come DM. So top में जो है हम लोग का DM और district magistrate आते हैं. This is again categorized, or this department is categorized into three basic parts. First, so first is the maintenance of law and order. So first is divided into law and order. Law and order. So this is handled by especially the IPS and his team. Okay. तो ये police department सारा हो जाता है. After then, if we are talking about the maintenance, land record and collection of land revenue, ये एक पूरा डिपार्टमेंट आ जाता है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कि लैंड का जो भी ये होता है इससे रिलेटेड काम होता है, रिकॉर्ड्स कीपिंग एंड maintaining those all things and collecting revenues and all. So this is belong to the second categories. So this is the maintenance of. Second is the maintenance of land records and collection of revenue of the lands only. Okay, and third is the civic amenities. So civic amenities में सारा चीजें आ जाता है. Other जो भी office in charge होता है, like health department आ जाता है. After then school department आ जाता है, education department, and then district planning department and executive engineering department. The rest of all department whatever that comes under the civic amenities. Amenities का मतलब specially होता है to give the facilities for the public. उसका हिंदी टर्म मीनिंग होता है आरामदायक जिसको बोलते हैं. So to ensure that the peoples are getting all the benefits of the government sector. So third is the civic amenities. Okay. So ये स्ट्रक्चर कभी आप लोगों का पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपका एक क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेशन.
तो आपको ये स्ट्रक्चर पूरा बनाना है, नॉट ओनली दिस मच। उसके बाद सिविक कम्युनिटीज के अंडर क्या क्या आता है वो सारा भी ड्रॉ करना है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के अंडर में क्या क्या आता है वो सारा भी आपको लिखना है। आफ्टर देन यू हैव टू राइट इन लॉ एंड ऑर्डर्स व्हाट आर द things coming as like after law and orders, if you see first is office in charge, and office in charge is again categorized into two part. One is one is SP, superintendent of police, and another is jailer. Okay, and SP is again under SP one deputy SP was there. Okay, is there, and after then under this deputy SP, inspector or station house officer is there. So in this way you can see the last which we have is the chowkidar, which वर्क ऑन द विलेज, वो गांव में काम करते हैं, जो सबसे ये में आते हैं, लोकल में आते हैं। जो नॉर्मली विलेज में कुछ इशू होता है तो दे चौकीदार फर्स्ट रिपोर्टेड एंड देन ही रिपोर्ट टू द नेक्स्ट पुलिस ऑफिसर। तो आप लोग कभी देखना वेन एवर एनी फेस्टिवल्स हैपेंस देन some chowkidar or some type this type of police officers are appointed for the that particular locations. कुछ पूजा वगैरह होता है, even in case of exams also, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो तो आप लोग देखना, the police used to appoint over there to maintain those all things so that such type of violence not take place. Okay, so this is the structure of the again if you see all the rest of all the structures, I am not writing because this is the very small space, so you all have books so you can see the structure. Okay, आप लोग भी एक बार बुक्स में देख लो। अंडर superintendent of police, deputy superintendent, after then SHO, sub inspector, assistant sub inspector, head constable, and chowkidar. So this is the department of the first department, which is maintenance of law and order. And here we have jailer and deputy jailer one with the superintendent of police. So police jailer जो होते हैं स्पेशली if you look into the jail, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, उसमें दो कैटेगरीज है। जब आपका मतलब हम आपका एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, मतलब कोई जब क्रिमिनल केस में फंसते हैं सो दे यूज्ड टू गो जेल। वो जेल जब जाते हैं तो उनका एक तो होता है पुलिस स्टेशन और एक जेल होता है। तो डिफरेंस बिटवीन पुलिस स्टेशन इज एंड जेल इज, पुलिस स्टेशन जो होता है स्पेशली कभी कभी पुलिस स्टेशन में टेम्पररी रखा जाता है पीपल को, बट जेल इज समथिंग लाइक जहां पे वो लोग को लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है। ठीक है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्राइम्स करते हैं इस तरह से 1 साल 2 साल के लिए, उसके लिए जो इवन इस तरह से भी जेल होता है जहाँ पे बहुत टॉर्चर करके रखा जाता है, इवन यू विल नॉट बी एबल टू मूव, तो बहुत कंजस्टेड रखा जाता है एकदम, मतलब इतना भी नहीं होगा कि यू कैन नॉट बी इवन स्टैंड अप और लाइक दैट, तो आपको एकदम पूरा ये रह के रहना पड़ेगा, इस तरह से सिचुएशंस में रहना पड़ेगा। आप लोग कभी देखना वीडियोस वगैरह में दिखाता है किस तरह से टॉर्चर किया जाता है बाय द पुलिस ऑफिसर्स। तो जेल जो होता है स्पेशली दैट इज सिमिलर टू द पुलिस स्टेशन, बट पुलिस स्टेशन में नॉर्मली रिपोर्ट वगैरह जो भी होता है या दे यूज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, बट जेल में वहां पे पनिशमेंट जिनको मिल जाता है दे यूज टू स्टे देयर और वहां पे रखा जाता है उसको। ठीक है, दैट इज द सिंपल डिफरेंस, नॉट अदर देन दैट। सिमिलर टर्म, ओके, सेम ही है, एक ही डिपार्टमेंट में आता है, लॉ एंड ऑर्डर में ही। ओके, आफ्टर देन मेंटेनेंस ऑफ लॉ, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू अगर आप देखोगे, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन कैटेगराइज्ड स्टेप वाइज। फर्स्ट ऑफिसर इंचार्ज एंड आफ्टर ऑफिसर इंचार्ज तहसीलदार। हम लोग इसके बारे में एक एक डीपली पढ़ेंगे, तहसीलदार कौन होते हैं, उसके बाद और भी जो टर्म्स है लाइक पटवारी कौन होते हैं, दीज ऑल टर्म्स वी विल लर्न वन ऑन वन we are having further. So first just look into the structure now, how the structure is there. Okay, how who is in the top positions, who is in the below positions, who is in the village level, who is in the district level. So these all things just you once look it out. Okay, and in the third options we can see in the civic amenities sections we have district surgeon और मेडिकल ऑफिसर्स जिसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। आफ्टर देन डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे जो भी गवर्नमेंट स्कूल होता है फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल इंस्पेक्टर यूज्ड टू अपॉइंट, दे यूज्ड टू विजिट टू द स्कूल, दे यूज्ड टू चेक द एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली और नॉट। Okay, after then executive engineer is there. So engineers basically they used to look into the construction work and all, which is basically related to the government sector. After then urban local bodies and panchayat raj institutions, ये सारे institutions कुछ होते हैं जो who look into the education system or like this type of training system, especially skill training and this type of things, they look into it.
So first, if we are talking about the office of SHO or police station, ये क्या होता है, which we have here. SHO का ऑफिस या पुलिस स्टेशन क्या होता है? To maintain the law and order, first thing is the very simple thing. To maintain the law and order only we look into the police stations में जाते हैं, कभी भी किसी के साथ भी कुछ इस तरह से इंसिडेंट होता है तो, ठीक है. So this is the basic functions of SHO. Okay. The full form of SHO is Station House Officer. ओके, स्टेशन हाउस ऑफिसर भी बोला जाता है, और इसको जो है और भी कुछ नेम से जाना जाता है. वर्क ऑफ दिस रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स एंड पटवारी इन सम डिटेल्स. तो ये सारे के बारे में अभी हम लोग एक एक चीज पढ़ते हैं. फर्स्ट है द ऑफिस ऑफ द SHO और द पुलिस स्टेशन. सो पुलिस स्टेशन और ऑफिस ऑफ द SHO जो होते हैं ये सेम है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज police station. When we talk about police station, then simple thing is maintaining law and order. And यहाँ पे अगर आप बात करोगे at the district level there is a superintendent of police, SP रहते हैं district level पे, ठीक है. And each subdivision of police circle is under the charge of deputy सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. तो यहाँ पे देखो एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो रहते हैं वो एसपी रहते हैं, ठीक है. एसपी यूज्ड टू स्टे इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, सो आफ्टर देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सब डिवीजन, ईच सब डिवीजन ऑफ पुलिस सर्कल इज अंडर द चार्ज ऑफ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. सो डीएसपी उसके बाद होते हैं, ठीक है. सो ये जो होते हैं बेसिकली एसपी जो होते हैं, दिस इज एसपी इज टेकिंग केयर ऑफ द सम ऑफ द पुलिस स्टेशंस एज लाइक 5 or 10 पुलिस स्टेशंस. बट अगर हम लोग डीएसपी का बात करें, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये जो होते हैं ये पुलिस सर्कल जनरली हैव 5 to 10 पुलिस स्टेशंस और थाना, जिसको थाना भी बोले जाते हैं. तो 5 to 10 पुलिस स्टेशंस होता है और इसको देखते हैं. दिस वे द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज इन चार्ज ऑफ ऑल पुलिस स्टेशंस. तो ये जो होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं ये 4 से 5 पुलिस स्टेशंस का होते हैं, 5 से 10 यहाँ पे दिया हुआ है 5 to 10. सो 5 to 10 पुलिस स्टेशंस को जो है एसपी देखते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है. और डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं इस सब डिविजन्स, और ये सब डिविजन्स को देखते हैं डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. मतलब सब डिविजन्स 5 सब डिविजन्स से 10 सब डिविजन्स मिला के एक डिविजन होता है, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है. तो यहाँ पे एक और सिंपली समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में. मान लीजिए कौन बनेंगे एसपी और कौन बनेंगे डीएसपी? चलिए एक एसपी तो एक ही बनेंगे, 5-6 डीएसपी बनेंगे. सो सपोज हाँ यू आर द एसपी. सो इनके अंडर में 5 से 10 पुलिस स्टेशन रहेगा, ठीक है. 5 से 10 सुपरिटेंडेंट ऑफ ये डीएसपी रहेंगे, ठीक है. सो दे विल लुक इनटू द पुलिस स्टेशंस एंड ही विल टेक केयर ऑफ द 4 to 5 पुलिस स्टेशंस लाइक दैट. ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस व्हिच हैपेंस. ओके, एंड after then if we are talking about the in this way the superintendent of police is in charge of all the police stations. तो एसपी सारे पुलिस स्टेशंस का चार्ज में होते हैं. He yes he generally belongs to the Indian Police Service. IPS से बिलोंग करते हैं. जैसे IAS से जो ये होते हैं DM जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, he belong to the which IAS Indian Administrative Service. तो उसी तरह से जो ये होते हैं SP जो होते हैं he belongs to the Indian Police Service IPS, ठीक है. तो ये एक्चुअली दोनों जो है IAS एंड IPS दोनों सिविल सर्विस का ही एग्जाम है, और इसके बारे में आप लोगों को और भी हम कोशिश करेंगे. सम वीडियोस आई विल अपलोड इन द एप्लीकेशन सो दैट यू कैन एक्सप्लोर अबाउट इट, wherein you will see how the training happens. इसमें ट्रेनिंग फेज में क्या होता है, सिलेक्शन के बाद भी आफ्टर सिलेक्शन इवन यू आर सपोज टू बी गो विथ ए लॉन्ग ट्रेनिंग पीरियड्स. आपको 4 साल या 5 साल इस तरह से कुछ एक अंडर ट्रेनिंग रहना पड़ता है, जिसमें ऑल द स्किल्स आर ट्रेन्ड. वहां पे हर चीज का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है. लाइक हॉर्स राइडिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है. स्विमिंग का दिया जाता है. सो एवरीथिंग, आई मीन
एक्सरसाइज से लेकर के बैलेंस डाइट से लेकर के एवरीथिंग इज आई मीन गिव द ट्रेनिंग ऑन दैट। सो वहाँ पे सुपरविजन में फिर अंडर द सुपरविजन ऑफ IAS IPS जिस सेक्टर में रहते हैं वो उनके सुपरविजन में काम करना होता है, उनके अंडर में काम सीखना होता है। आफ्टर देन वो कोई एक कैडर जो है वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट और बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एग्जाम्स एंड आई मीन इट्स वेरी टफ एग्जाम वी कैन से। whoever want to go in that sector they need to study very hard since now only। अभी से आप लोग का बेसिकली 6 is the basic of any field। कोई भी फील्ड में जाओगे 6 to 10 आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर लियो, इट इंक्लूड्स 12 ऑल्सो, अगर 12 को भी इंक्लूड करते हैं तो 6 to 12 is the basic class wherein you can prepare for the upcoming your future, ठीक है। तो कहीं भी जाना है, किसी फील्ड में जाना है, उस फील्ड के बारे में एक्सप्लोर करना अभी से चालू कर देना है आप लोगों को, ठीक है। So this is the things। After then if we are talking about the compositions of police stations। अभी compositions of police stations क्या होता है देखिए, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि what do you mean by composition of police stations or write about compositions of police stations। तो composition of police stations क्या होता है, the inspector of police or the station house officer or the दारोगा is in charge of the police station। पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होते हैं वो कौन होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, या the police inspector of police or the station house officer or the दारोगा। so these are the some terms which used for the I mean who is taking care of the police station। जो पुलिस स्टेशन का हेड होते हैं उनको इस टर्म से जाना जाता है, दारोगा बोला जाता है, या तो कोई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी बोलते हैं, एंड समवन कैन से स्टेशन हाउस ऑफिसर्स आल्सो, SHO आल्सो। सो सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, चौकीदार, ये सारे जो पोस्ट होते हैं दे यूज्ड टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द चौकीदार और द इंस्पेक्टर which it is called इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो रहते हैं उनके अंडर में ये सारी पोस्ट काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन रहते हैं, द सब इंस्पेक्टर, उनके अंडर में सब इंस्पेक्टर होते हैं। आफ्टर देन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से एक के बाद एक आ जाता है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। सो लेवल वाइज इस तरह से जाता है। तो यहीं पे तीन पोजीशंस तो हो गया, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आफ्टर देन हेड कांस्टेबल, ठीक है। तो इस तरह से जाएगा। आफ्टर देन चौकीदार, कांस्टेबल के बाद चौकीदार। तो ये सारी चीजें चौकीदार जो है नॉर्मली विलेज लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो चौकीदार डिप्यूटेड फॉर ईच विलेज, हर गांव में आप लोगों का पता करना चौकीदार होंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका यहाँ पे कुछ इशू हुआ है एंड यू आर गोइंग समवेयर एल्स टू राइट द कंप्लेंट। अगर मान लीजिए दिस इंसिडेंट आई थिंक हैपेंस विद मी आल्सो वंस टाइम, माय पर्स आई मीन समवेयर मिसप्लेस, तो कभी गुम हो गया था कहाँ पे, तो हम दूसरे पुलिस स्टेशन में चल गए थे। एट दैट टाइम आई वाज नॉट सो मच अवेयर अबाउट इट, सो आई वाज इन विच क्लास आई एम नॉट रिमेंबरिंग येट, मे बी इन ग्रेजुएशन और इंटर, I think at the time of inter means 10+2. So at that time, somewhere where the displacement happens, I mean जहाँ पे misplace हुआ था पर्स, वो कहीं और डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। तो I have gone somewhere else. So he was saying कि you need to go there for the complaint. Okay, जहाँ पे आपका ये गुम हुआ है, because अगर मान लीजिए you are belong to this particular locality, तो आपको यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है you have to go to this police station only for the complaint। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए समथिंग हैपेंस, सो वेयर यू विल गो टू रेज द कंप्लेंट। सो नियर बाई पुलिस स्टेशन आपके लोकेलिटी में जो आते हैं वहीं पे जाना है, ठीक है। सो एवरी पुलिस स्टेशन हैज ए डेफिनेट एरिया, उनका अंडर में एक एरिया आता है, ठीक है। एज लाइक अगर आप लखीसराय का बात करोगे, उनका एक एरिया आता है कि इतना ही दूर तक वो देखेंगे, ठीक है। तो आप अगर मुंगेर चल जाएंगे तो मुंगेर का कोई एक ऐसा लोकेलिटी होगा दैट विल कम्स अंडर मुंगेर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुंगेर का लोकेलिटी पड़ेगा वो यहाँ वाला कंप्लेंट रेज नहीं लेंगे, ठीक है। लखीसराय वाला, लखीसराय के अंडर में जो आएगा he will not take the other। Murder of someone, he is the body, he is storing another district. In that district magistrate, that case he will file in that district. Sometime what happens now in that case, suppose someone
from, very good, sit down, very good question. Ki suppose her question is ki suppose someone from Lakhisarai he become murdered in Munger, so what will happen, where the complaint will be lodged? See, in these cases the complaint can be loudly please. आप अगर मुंगेर में रह रहे हो और आप अगर कंप्लेन कर, मतलब यू आर, इफ इस टाइम रह रहे हो, मतलब यू आर टेम्पोररी लिविंग देयर, राइट, है ना? See, the case is belong to wherever the location. अगर कुछ केस ऐसा है which is belongs to the Munger location, then you can log complaint there only. But if it is belongs to this location, as like see her question is like कि लखीसराय से है, मुंगेर में इंसिडेंट हुआ है, तो मुंगेर में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, but that will be handled by the this what called Lakhisarai police stations also, okay, because that will be transferred or that will be inquiry from both the stations, वो transfer हो जाता है normally, ठीक है? So इस केस में दोनों पुलिस स्टेशंस मिलके भी sometime they used to find out the solutions and basically जहाँ पे इंसिडेंट होता है वहीं पे रिपोर्ट होता है ज्यादातर, ठीक है? So we'll report there only, but they can work together also, okay? So this is the things, and after then sometime क्या होता है कि आप अगर जाओगे ना पुलिस स्टेशन में, वो लोग बहुत नखरा करते हैं, वो कंप्लेन दर्ज नहीं करते हैं जल्दी, ठीक है? वो कोशिश करते हैं भेज दे वापस। एक कॉपी होता है ना, आप अगर कहीं कंप्लेन रेज करोगे, यू शुड हैव प्रूफ कि हमने कंप्लेन दिया है या हमने रिटर्न कुछ दिया है, बट वो अगर दे देते हैं और इस तरह से कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, तो इसलिए वो लोग जल्दी नहीं कुछ ये करने के लिए सोचते हैं। बट इन दिस केस अगर कुछ क्रिटिकल केस है तो वो ले लेते हैं, जल्दी ले लेते हैं, ठीक है? सो सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पुलिस स्टेशन इज फर्स्ट फंक्शन सेम थिंग, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ओके। आफ्टर देन टू रजिस्टर द कंप्लेंट, अगर किसी का कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो, कुछ कंप्लेंट्स आए तो कंप्लेंट रजिस्टर करना जो है बेसिक फर्स्ट जो है फंक्शन है पुलिस स्टेशन का। सो पहला फंक्शन जो है दैट वी विल टेल इज द वर्क ऑफ पुलिस स्टेशन इज रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट्स, ओके। सो सिंपली आप रजिस्टरिंग ए कंप्लेंट लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शंस। आफ्टर देन दे टेक एक्शंस ऑफ ऑल द केसेस इंक्लूडिंग लैंड डिस्प्यूट्स एंड विद इन द एरियाज ऑफ देयर कंट्रोल, तो उनके एरिया में जो भी एरिया है, उसके एरिया में अगर कोई जमीन जायदाद को लेकर के डिस्प्यूट होता है तो उसको भी वो कंप्लेन लॉन्च करते हैं, उसको भी वो जो है देखते हैं, ठीक है? आप हाँ प्लीज, हाँ 100 डायल करोगे तो पुलिस स्टेशन लग जाएगा। हम ट्राई भी किए हैं, आप लोग किए हो कभी? I was remember that is also incident of my, I mean earlier time only. I was at that time or same graduation, or I was preparing from some computer. That is 100 only. See, that is work in different ways. जैसे कस्टमर केयर का भी नंबर सेम होता है, राइट? सो इस टेक्नोलॉजी, तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे 100 डायल करोगे तो यहाँ पे नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन का होगा उनके पास ही लग जाता है, ठीक है? तो दैट इंसिडेंट व्हाट हैपेंस, वो भी सिंपल चीज के लिए, हम पढ़ाई कर रहे थे एट अराउंड 11 और 11:30 इन द नाइट, तो सामने में पूरा डीजे बज रहा था, ठीक है? अब मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, देन आई कॉल्ड कि एक्चुअली इन देयर इन सिटी लोकेशंस देयर इज ए प्रोविजंस कि आप जो है लेट नाइट हाई वॉल्यूम में साउंड नहीं प्ले कर सकते हो, ठीक है? इवन आफ्टर टेकिंग परमिशंस आल्सो, परमिशन लेने के बाद भी आपको एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दिया जाता है, एंड उसके बाद आप हाई वॉल्यूम पे कभी भी गाना नहीं बजा सकते। एंड इवन दैट वाज द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा था उस समय। सो आई जस्ट ऑब्जर्व कि कॉल किए नहीं, तुरंत वहां पे जो दे यूज्ड टू ट्रेवल्स, यहाँ पे पता नहीं होता है कि नहीं, इन सिटी लोकेशंस जो शहर जो जगह होता है ना, वहाँ पे वो वैन होता है, ट्रैफिक वैन होता है, वो जो राउंड मारते रहते हैं, ठीक है? सो वो तुरंत कहीं ना कहीं से वो आ गए और तुरंत बंद भी हो गया, ठीक है? बंद करा दिए जाके। तो इस हैपन, कभी ट्राई करना, ठीक है? गलती से मतलब ऐसे ही मत बुला लेना, नहीं तो फिर उठा के ले जाएंगे तुम्ही को, ठीक है? हाँ, ऐसे मत कॉल करना, कुछ डिस्प्यूट होता है अलग बात है, प्लीज।
हाँ, सो इन विलेजेस ऑल्सो, इन एनीवेयर इस तरह से जो भी मतलब कुछ वायलेंस अगर इस तरह से होता है ना, यू हैव ऑथोरिटी, आपको करना चाहिए। आप लोग को तो यू ऑल शुड ट्राई टू राइट समथिंग ऑल्सो। कभी आप लोग जो अपना एरिया का सिचुएशन है उसको लेकर के आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको लिखने का कोशिश करिए। यू ट्राई टू राइट समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लोकेलिटी टू योर गवर्नमेंट, टू योर जो भी ऑफिसर्स है, ठीक है, मेल करने का कोशिश कीजिए। अभी तो यू हैव द एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड सोशल मीडियाज, सो आप ये सारी चीज अभी इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस ऑल थिंग्स फ्रॉम नाउ ओनली, योर राइटिंग एबिलिटीज, योर थिंकिंग एबिलिटीज विल बी इम्प्रूव, राइट। सो हर चीज में एक्शन लेने का जो है फ्रॉम नाउ ओनली यू स्टार्ट, ओके। सो दिस इज द थिंग्स। नेक्स्ट इज द, हाँ, जो भी क्राइम्स होता है उस पे वर्क करना इनका काम है। द पुलिस टेक्स वेरियस स्टेप्स प्रिवेंट क्राइम्स। क्राइम कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। एज लाइक बेसिकली ये होता है, जब आप ध्यान देना, इस तरह से कुछ फेस्टिवल्स का जुलूस वगैरह निकलता है, ठीक है, तो उस समय द पुलिस अपॉइंटेड ओवर देयर टू कंट्रोल दोज ऑल थिंग्स। ताकि एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा था कहीं, शायद इन समवेयर इट वाज आस्क्ड ड्यूरिंग द आईएएस इंटरव्यू ओनली। आईएएस का कोई इंटरव्यू में ही इनको पूछा गया था, आईएएस या आईपीएस का इंटरव्यू में ही था, आईपीएस का ही था शायद। सो दैट पर्सन आस्क्ड कि सपोज वन यू आर ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यू आर ए आई मीन डीएम ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, आप एक डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, डीएम है। अब आपका उस लोकेशन में मान लीजिए जुलूस निकालना है, ठीक है, तो एक तो है जो हिंदू रिलीजन्स का है, वो चाहते हैं कि माँ दुर्गा का विसर्जन होगा, तो वो भी जुलूस के लिए आपके पास एप्लीकेशन दिए हैं कि हमको आज का डेट में ये टाइमिंग में जो है जुलूस निकालना है, ठीक है। हाँ, और एक जो है हिंदू कम्युनिटी, सॉरी मुस्लिम कम्युनिटीज से भी और एक आदमी आए, मतलब एक टीम आए हैं, और उनको भी सेम डेट में सेम टाइमिंग में जो है उनको भी जुलूस निकालना है। तो आप इस सिचुएशंस में क्या करोगे, हाउ यू विल कंट्रोल दिस सिचुएशन? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड स्पेशली ड्यूरिंग दोस टाइप ऑफ एग्जाम्स। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव का एग्जाम जो होता है आईएएस या आईपीएस का, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हाउ यू विल कंट्रोल दिस ऑल सिचुएशंस। लाइक कोविड का सिचुएशन अभी पूछ सकता है कि इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस हाउ यू विल कंट्रोल द लोकेशंस। अगर मान लीजिए कोविड का सिचुएशन चल रहा है और आपका पब्लिक जो है वो नहीं मान रहे हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, मार्केट में भीड़ लगाते हैं, सो हाउ यू विल कंट्रोल। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले दीजिए कि आप लोग में से कोई बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू विल डू, आपके हिसाब से आप क्या करोगे अगर आप डीएम रहेंगे तो। यस प्लीज। यू विल चार्ज द लाठी, फिर दैट विल हैपन एज लाइक द मुंगेर। हाँ, आपके ऊपर लाठी चला देंगे, पुलिस स्टेशन फायर कर देंगे। पब्लिक पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप वायलेंस नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। You, I mean, police are not for the creating violence or for lathi charge only. They are for the protection of the people. They are for the help to the public, not creating this type of disputes, this type of situations. Okay, they are for resolving this, right? So that is not the direct situations की directly लाठी चार्ज कर दोगे, ठीक है। Yes, please. आप लोग भी बताएं जो ऑनलाइन है, please some things what we can do in this situation. We will change the time, but दोनों कम्युनिटीज बोल रहे हैं कि नहीं, हमको एक ही टाइम में, हमको भी चाहिए 6 से 8 बजे के बीच शाम में, एंड दोनों कम्युनिटीज को वही टाइमिंग चाहिए। एक मिनट, हाँ, रूट चेंज कर देंगे। हाँ, दिस इज द वन ऑफ द सॉल्यूशंस कि रूट चेंज करने का कोशिश करेंगे। और प्लीज सिट डाउन, वेरी गुड, प्लीज कीप साइलेंस, लिसन। क्वेश्चन इज सपोज two communities are there, one is Hindu communities, another is Muslim communities. So एक ग्रुप का नहीं, यहाँ पे दो ग्रुप अलग है ना, दोनों। हाँ, मान लीजिए एक ही रास्ता है, ठीक है, उसको आपका आंसर में आते हैं हम। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो दो कम्युनिटीज के लोग हैं, दोनों को जुलूस निकालना है, ठीक है। जुलूस समझते हो ना, जो रास्ता में जो पीपल जो है वो विसर्जन के लिए जो निकलता है, ठीक है,
तो वो दोनों कम्युनिटीज बोल रहे हैं हमको भी निकालना है, हमको भी निकालना है। तो क्या होता है नॉर्मली इस तरह का इंसिडेंट में आप लोग देखना, इस तरह से काफी सारे सॉन्ग्स भी है जो वायलेंस क्रिएट करते हैं। इस तरह से काफी सारे लोग हैं स्पेशली जो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर आप क्या सॉल्यूशंस निकालोगे कि वो लोग भिड़े नहीं, लड़ाई ना हो दोनों कम्युनिटीज में? Keep silence. But I will toss between them, and the one who wins will go first, and the one who doesn't win. ये भी एक सॉल्यूशन है। और भी बहुत सारा सॉल्यूशंस हो सकता है। आप लोग एक बार घर में सोचना इसके बारे में कि क्या सॉर्ट आउट हो सकता है दोनों सिचुएशंस के बारे में। ठीक है, दो जो सिचुएशन मैंने बताया। और एक क्या बताया थे? हाँ बोलो। Okay, thank you everyone whoever online let us